शिलांग की एक स्थानीय अदालत ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की चल रही जांच में 2 सह आरोपियों को जमानत दे दी है। सहायक लोक अभियोजक तुषार चंदा ने पुष्टि की है कि इंदौर के उस फ्लैट के मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर, जहां मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी मेघालय से भागने के बाद कथित तौर पर छिपी थी, और उसी परिसर के सुरक्षा गार्ड बलवीर अहिरवार दोनों को जमानत मिल गई है। नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट DKK मिहसिल की अदालत ने राजा रघुवंशी हत्याकांड के 2 कथित सह आरोपियों को जमानत दे दी है। सहायक लोक अभियोजक तुषार चंदा ने बताया कि मेघालय से भागने के बाद सोनम रघुवंशी जिस फ्लैट में रुकी थी, उसके मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और सुरक्षा गार्ड बलवीर अहिरवार को 9 जुलाई को अदालत ने जमानत दे दी है। चंदा ने कहा कि जिन धाराओं के तहत उन पर आरोप लगाए गए थे वे जमानती थे और इस हत्या में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। आप भी सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब। On the day of production on 9/7/2025, this two person, that is Lokendra Singh Tomar and Balla Ahirwar, they were granted bail by order dated 9/7/2025 under certain condition. Condition already it is there in the court record, and for Shilom James, his production is fixed on 16th of this month. On that day they may move bail for Shilom James. So if they move bail, then we'll object for his bail, because his involvement is very much there as of now. As per the record, his involvement is very much there. So let them file a bail application, formal bail application before the honorable court. Then we'll go according to their petition and we'll give our objection for not to release Mr. Shilom James at this juncture from this instant case. So Tomar and security guard, are they not involved? So far, their involvement is very less, because Lokendra Singh Tomar, he is only the owner of that flat, and this Balla, he is the security guard of that flat. So their involvement is so far now, their involvement we could not find. So if in the later course of investigation we find their involvement is there, then we will pray to the honorable court to reject their bail that is there. The prosecution had argued for not giving Yes, bail. we have argued for not to grant this accused on bail, because since the case is serious in nature, then many things has to be come out, and moreover this case is under investigation till now. So our objection was there not to release these two person, that Lokendra Singh Tomar and Mr. Balvinder Singh Ahirwar, at this juncture on bail. But court, after hearing the parties, that is the LSC and as well as the state, we represented the state, court has granted them bail under certain condition. So in the later stage of investigation, if we found that their involvement is very much there, then accordingly we will file a petition before the honorable court for rejection of their bail. So the accused were represented by lawyers or Accused are represented by LSC, legal aid. Legal Aid Council. Okay, coming to Shilom James, when is the next production? His next production is on 16th of this month. So as of now, whether his production will be taken on VC or through physical attendance, that we have to see. As of now, we have got no information. So on the day, we'll see. So Shilom James has engaged an advocate. Yes, Shilom James, he engaged an advocate who came from Indore. So most probably he may file a formal bail petition on 16th, on the day of his production. So what about others? Others, their remand is not yet over. So we'll inform the press if required when they will be produced. इससे पहले 2 जुलाई को सुनवाई के बाद अदालत ने एक अन्य सह आरोपी शिलोम जेम्स को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इंदौर निवासी जेम्स के वकील
अगली सुनवाई के दौरान अदालत में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। जेम्स पर 23 मई को सोहरा में इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी द्वारा की गई सनसनीखेज हत्या के सबूत नष्ट करने का आरोप है। तो वहीं राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा है कि शिलांग पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे परिवार पूरी तरह संतुष्ट है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी पुलिस को मिला है, लेकिन अभी तक पुलिस ने ये नहीं बता पाई है कि आखिर राजा की हत्या की वजह क्या है। 2 आरोपियों की जमानत की भी बात सामने आई है। इनमें से एक सुरक्षा गार्ड और दूसरा फ्लैट का मालिक है। संभावना ऐसी है कि उनके खिलाफ सबूतों की कमी होगी, इसलिए शिलांग पुलिस ने उनको जमानत दे दी है। विपिन ने यह भी बताया कि वे इसी हफ्ते शिलांग जा रहे हैं। फ्लाइट की टिकट भी बुक हो गई है। हम आप दर्शकों को एक और खुलासे के बारे में बताते हैं कि सोनम के भाई गोविंद ने बताया है कि राजा के परिवार ने 11 मई को शादी के दौरान दुल्हन बनी सोनम को जो गहने दिए थे वे उन्होंने वापस मांगे थे। समाज की मंजूरी के बाद पुलिस की मौजूदगी में उनका सामान लौटा दिया गया है। सोनम हनीमून पर जाने के दौरान ये गहने अपने मायके में छोड़कर गई थी। सोनम सिर्फ राजा के परिवार से मिला मंगलसूत्र लेकर हनीमून पर गई थी। वो मंगलसूत्र भी वो होटल में छोड़कर आ गई थी। शिलांग पुलिस ने यह मंगलसूत्र सोनम के बैग से बरामद किया था। गोविंद ने इंदौर के राजेंद्र नगर थाना प्रभारी को आवेदन देकर पुलिस की मौजूदगी में ये तमाम गहने राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी को हैंड ओवर किए हैं। इसमें गोविंद और विपिन दोनों के हस्ताक्षर भी किए गए थे। सोनम के भाई गोविंद ने बताया कि हमने भी राजा को कार दहेज में दी थी। गोविंद ने यह भी बताया कि हमने 4 लाख रुपए नगद देकर कार फाइनेंस कराई थी। बाद में इसकी EMI भरनी थी। ऐसे ही सगाई और शादी में करीब 1 लाख रुपए नगद भी दिए गए थे। लेकिन हमारे पिताजी का कहना है कि बेटी को दिया हुआ दान हमें वापस नहीं चाहिए। उधर सोनम के परिजन ने राजा के परिवार को वो गहने लौटा दिए हैं जो उन्होंने शादी में अपनी बहू को उपहार में दिए थे। हालांकि सोनम के पिता ने बेटी को दिया हुआ दहेज और कैश लेने से इनकार कर दिया है। सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा कि वे बेटी को दिया हुआ दान वापस नहीं लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सोनम से मिलकर पूछ नहीं लूँगा तब तक यह मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि ऐसी हरकत मेरे बेटी ने की है। मेरे बेटी ने ही अपने पति की हत्या की है। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।